Hello guys, welcome back to the channel. So in today's video what we're gonna do, first things first, we're gonna quickly check out the technicals of Nifty 50 आज का दिन कैसा गया. As you guys might have heard that Israel out of nowhere have decided to again bombard Lebanon, and bombings के वजह से they've killed almost 200 people in Lebanon, and because of that Iran has kind of said that the ceasefire no longer exists, because if you attack Lebanon then you are attacking Iran. And then there's also some news about 3 out of the 10 demands which Iran had raised for the finalization of the ceasefire with US. 3 out of those demands, the US is said that it is non-negotiable and that they won't be accepting. I think one of that was regarding the nuclear enrichment, uranium enrichment, and a few other things. And इसी वजह से some of the people are also jittery, saying that ये जो मूव कल हम लोगों ने देखा था इंडेक्स में ऑफ 3.4% गैप अप एंड फर्दर अपवर्ड्स क्लोज हुआ था, वेदर दैट विल सस्टेन. सो हम लोग क्विकली जाके टेक्निकली चेक करेंगे. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू tradingview.com. सो अभी मैं tradingview.com में आ गया. I just quickly share my screen. Yeah, so I'm in tradingview.com and as you can see आज का निफ्टी का we've fallen about 0.93% on close, but interesting 2 points मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, because the price movement hardly matters. What matters is the volume movement and the intensity of the selling. तो अगर आप लोग देखोगे क्लियरली कल के कंपैरिजन में आज का वॉल्यूम वाज लिटरली 70%. दैट्स ऑलमोस्ट 30% ड्रॉप इन वॉल्यूम. एंड ये जो वॉल्यूम आया दैट इज ऑल्सो लोअर देन द लास्ट 14 days एवरेज वॉल्यूम. सो from a selling volume point of view, the sell of today wasn't as strong as the previous few days buying, so that is positive for the bulls. Secondly, RSI, maybe there was a fall, but the drastic the sentiment or the intensity of the fall wasn't high. RSI still stayed above 50, which is a primary requirement for a sustained considerable move upwards. तो जो आज हुआ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मी इट्स वेरी सिंपल. मुझे लगता है कि दिस जस्ट इट्स जस्ट फ्यू जिटर्स ऑन द वे अप. अनलेस एंड अनटिल कुछ मेजर नहीं होता है, वी आर नॉट गोइंग टू गिव अवे द राइज विच वी मेड येस्टरडे. और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, दिस समथिंग टेक्निकली यू गाइस शुड अंडरस्टैंड. ये जो गैप अप हुआ था, आई जस्ट यूज अ फ्यू लाइन्स हियर सो दैट आप लोगों को क्लियरली समझ में आए. यू सी दिस गैप अप, द हाई, ये जो हाई था फ्रॉम दिस हाई टू दिस पॉइंट, इफ आई जस्ट शो यू वन मोर टाइम, अगर आप लोग देखोगे ये हाई से जो रे, गिव मी अ सेकंड गाइस, या हॉरिजॉन्टल रे, तो यहाँ से जो रे था दिस पर्टिकुलर हाई टिल द पॉइंट वी हैड द स्टार्ट ऑफ द गैप अप, ये जो एक विंडो बना यहाँ पे, इफ यू गाइस लुक एट इट केयरफुली यू विल सी दिस इज ऑलमोस्ट 3.4%, राइट. जो कल का जो काइंड ऑफ 2.3% जो उठा था, दिस पर्टिकुलर गैप इज नोन एज अपवर्ड राइजिंग विंडो, और ये अपवर्ड विंडो इज अ सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ. तो देखो टेक्निकली क्या होगा, even if something bad happens over the next 2-3 days, कुछ मेजर एग्रावेशन एस्केलेशन हो जाता है वॉर में, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द मार्केट विल रिएक्ट नेगेटिवली, बट इट विल नॉट ट्राई टू ब्रेक द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, जो कि इस चैनल का लोअर सपोर्ट पॉइंट है. तो इट माइट हैपन लाइक दिस कि अगर कुछ ड्रास्टिक होता है दैट वी माइट कम फ्रॉम हियर टू हियर, consolidated for a point of time and then move upwards, right? So this is what I wanted to show to you guys. Also और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना था regarding over a period of time what you could expect as a particular return out of Nifty. बहुत सिंपल है. दिस if I can show you properly over here, तो मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ. ये अगर आप लोग क्लियरली नोटिस करोगे, दिस इज अ cup with a handle pattern. देख रहे हो, cup with a handle pattern formed during the entire price consolidation phase as well as the time consolidation phase of the market before this war started. ये वार का जो नेगेटिव पैनिक सेलिंग हुआ,
पैनिक सेलिंग कॉज दिस पर्टिकुलर पैटर्न टू फेल, वरना ये पैटर्न वाज अ कप विद मल्टीपल हैंडल्स हियर. ये एक हैंडल बोल सकते हो आप, ये एक हैंडल बोल सकते हो आप, राइट. सो वी वर ऑन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग आउट. वी हैड ऑलरेडी टेस्टेड दिस पर्टिकुलर, आप लोग क्या बोलते हो, दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन एट द टॉप, राइट, द प्रीवियस ऑल टाइम हाई मल्टीपल टाइम्स. So we were supposed to go up and then the war happened and sentiments got bad. But अभी अगर recovery हुआ, the first recovery will be towards this particular all time high and probably it'll take one quarter, 1.5 quarters to reach that point. But जो major rise होता है after that, what should be a target from a cup with handle pattern? It's very simple. Cup with handle patterns का target measure किया जाता है, ये जो lowest point है till the point where द हाई वॉज मेड इन द प्रीवियस रैली, उसको हम लोग लेते हैं और इस पॉइंट के ऊपर ये जो अपर लाइन है उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं. अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं वी कैन सी दैट वी कैन एक्सपेक्ट अप्रॉक्स 20% रैली आफ्टर वी मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू निफ्टी एट अराउंड कितना, ये निफ्टी शुड बी अराउंड this particular value of nifty will be around 31,868 or 32,000. That should be a fair assumption of where nifty should be. And as for when we should reach that 32,000 mark, if everything is normal and happens in a proper linear manner, तो हम लोग 32,000 mark on an average by the end of next year पहुंचेंगे. Which means that if we say that the bull market had kind of started now, then we can say we will reach the top point of this bull market rally by the end of 2027, जो exactly around close to a 1.5 years of bull market rally होगा, which is tentatively the amount of time that generally bull markets on an average last in India between 1 to 1.5 years. So everything according to technicals looks fine, guys. Doesn't look like a big worry signal to me, except that if the war aggravates, then obviously short term में we might move down, but from a long term mid term perspective price correction बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, might lead to some consolidation and then we eventually move up. तो इसके बाद in the second part of the video I like to talk about the result season, obviously, because result season start हो गया है. Today 2-3 companies release their results, out of which one of the companies is in the India's wealth management space. तो Anand Rathi Wealth, they release their result और result काफ़ी अच्छा है उनका. They have been a very consistent compounder, a very consistent stock in the market, and I like to discuss the result with you. और उसमें से कुछ important points, उनके business model, उनका स्क्रीनर पे हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे अबाउट द कंपनी एंड देन विल लुक एट देयर वैल्यूएशंस एंड देयर टेक्निकल्स थोड़ा. तो लेट्स गो बैक टू स्क्रीनर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा रहा उनका रिजल्ट्स? आई एम एट ट्रेंड लाइन. तो दे रिलीज देयर Q4 रिजल्ट्स एज वेल एज द FY रिजल्ट्स, एंड उसमें अगर आप देखोगे कि उन लोगों का रेवेन्यू ग्रो बाय 25%. वेरी गुड रेवेन्यू ग्रोथ रेट. इनफैक्ट दिस कंपनी, इफ यू गाइज हैव बीन फॉलोइंग आनंद राठी वेल्थ, they are primary into mutual fund distribution and client wealth management. ठीक है. तो and they over a period of time उनका जो revenue CAGR has been very good. On an average the revenue CAGR has been above 25-30% for last 5 years, and irrespective of whether the market goes up or down, this is one of the companies जो बहुत ही ज़्यादा compelling results देते हैं. They are very consistent with the results, under promise करते हैं, over deliver करते हैं, and they've made a lot of money for their shareholders. So this quarter also nothing different. They've raised their they've given a revenue growth of 25%, PBT grew by 26%, PAT grew by 25%. in fact in लोगों का EPS also has been very consistently growing across the 4 quarters. Their AUM, which is basically their assets under management, कितना client का money they manage, that has itself changed, grown by 21%. तो सारे numbers मेरे को, I'm not repeating, आप लोग clearly देख सकते हो, has been fairly good under 20-25% range. Private wealth पे जो actively वो लोग अपने client के families के wealth को manage करते हैं, the families have grown by 14%, which is a good jump. Relationship managers के count भी around similar amount में grow किया है. And see, this is a business of linear growth. जितने हम लोग relationship managers को recruit करेंगे,
each of those relationship managers will be able to bring in more clients through their expertise, through their connections, and each relationship manager will then optimize and then maintain a number of client under them. So this is a तो ये business को analyze करने में सबसे important चीज for all of you is that ideally the relationship manager number should keep on growing up, because the number of active families they manage, that has to grow to make sure that the AUM or the assets under management जो ये companies करते हैं that keeps on growing, because at the end of the day it is a business of commission, it is a business of taking spreads from the client and the mutual fund distributors. ठीक है. Firoz Aziz, one of my favorite people in the market. I love how he speaks about the market. काफी data backed बातें करते हैं वो, ऐसे ज्ञान रैंडम जाके नहीं देते. He gives ज्ञान backed by data, which is something many CEOs lack. So I really like the fact that Firoz has done a great job with the company. अगर आप लोग देखोगे, he's mentioned that last 16 quarters से, right, last 16 quarters से मतलब 4 साल से they have consistently grown their quarterly profits by around 32%, median 33%, deviation भी उन लोगों का बहुत कम है. Which means if you look at the last 16 quarters, मतलब 4 साल मतलब looking at 2022 post, right, generally it's been a good period of time to maintain such a good record, even after this brutal 2024 के बाद 2024 सितंबर के बाद जो bear market start हुआ, to be consistent and deliver such numbers are like really very good. Asset side में मैंने बात किया, they've done really well. 21% growth है assets under management में. 1663 amount of new client families एक last 1 year में they've added, which is like very good. That is almost like more than 10-12% of their active total family count per year. तो यहाँ से ही उनका almost volume growth हो जाता है, right? So they've also given a guidance 20% of their long-term growth will be the long-term revenue growth of 20-25%, which is a very safe and stable guidance given by the company. कुछ other things देख लेते हैं. ये company ने इस बार they've also guided for they've also mentioned that they'll be doing 2-3 things. पहला वाला is obviously they'll be giving a dividend of ₹7 per one equity share. That's a 140% of the face value. That's a very good dividend announcement done by the company. और दूसरा very interesting चीज is that they've also guided for bonus shares in the ratio of 1:1, right? So one fully paid up equity share for ₹5 only, each for every one existing fully paid up equity share. मतलब basically जो हमारा shareholders है of Anand Rathi Wealth, they will be getting 1:1 bonus shares, which is another great announcement by the company. And इसी वजह से if you look at it, Anand Rathi's share price today grew by around jumped by around 4.42%. We'll look at the technicals toward the end. Now I'll just like to show you a few things in Skinner regarding Anand Rathi. ठीक है. पहला चीज about Anand Rathi is that उनका return ratios are very very strong. In fact अगर आप इंटायर वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स के पूरा पूरा यूनिवर्स को देखोगे, देयर विल बी वेरी फ्यू कंपनीज जिनका रोसी और रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 50-60% जो आनंद राठी का है. एंड दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिकॉज इट शोज दैट हाउ एफिशिएंट दे आर विद द money they raise, how efficient they are with the capital they employ in the business. और इतना high return ratios to be maintained over a period of time takes caliber, और ये कैलिबर है उनके पर्टिकुलर बिजनेस में. दैट इज द रीजन गाइज आनंद राठी के शेयर को 75 की पी में ट्रेड किया जाता है. एंड दैट इज एब्सोल्युटली एट अ माइंड बॉगलिंग प्रीमियम टू मेनी अदर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज एंड मेनी अदर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. द रीजन इज कंसिस्टेंसी. देखो एक चीज आप लोग समझ लो, स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स. इट डजंट मैटर कि तुम्हारा कंपनी एक क्वार्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट किया, 100% ग्रोथ लाया, नेक्स्ट क्वार्टर में 20% डी ग्रोथ हो गया. मार्केट डज नॉट लाइक इनकॉन्सिस्टेंसी. मार्केट डज नॉट लाइक टू बी मेड अ फूल ऑफ. मतलब कभी कभी आप लोग ये भी देखोगे कि देयर लॉट ऑफ मैनेजमेंट जो गाइडेंस देते हैं, और अगर वो लोग गाइडेंस को मीट नहीं कर पाते हैं, अंडर मीट करते हैं, या फिर दे डोंट रीच द गाइडेंस, तो क्या हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट हमेशा उनके स्टॉक्स को बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं.
राइट, दे सेल, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो जाता है उनके स्टॉक्स में रिजल्ट्स के बाद. आनंद राठी वेल्थ हाउएवर ऑन द अदर हैंड इज अ कंपनी जो अंडर प्रॉमिस करता है और ओवर डिलीवर करता है, विच मीन्स दैट it's always been, I think, last 1 साल से I've been tracking this company, and they've always promised that they'll grow their revenue at around 20-25%, and each and every time they have completely over delivered. 30% के नीचे, 25% के नीचे इनका revenue और profits grow in कभी आया नहीं, even after so many headwinds in the last 18-20 months. That is one thing. Secondly, और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ is that consistency of results. जब भी आप लोग कोई कंपनी को एनालाइज करते हो टू बी एडेड इन योर पोर्टफोलियो, हमेशा देखना कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5-10-15 ईयर्स, एटलीस्ट लास्ट 5 to 10 ईयर्स, उनका रिजल्ट, उनका रेवेन्यू, उनका सेल्स ग्रोथ शुड बी कंसिस्टेंटली मूविंग अप अलॉन्ग विथ अ डिसेंट मार्जिन जो ऑन द हायर साइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होता जाए. ये दोनों चीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आनंद राठी में आप ये लोग यू कैन क्लियरली सी, राइट. देन और एक चीज आई जस्ट वांटेड टू क्विकली शो इज दैट इस पर्टिकुलर स्टॉक में, आनंद राठी वेल्थ में, जैसे लॉट ऑफ FII एंड DII इंटरेस्ट. तो अगर आप लोग देखोगे फ्रॉम 2023 FIIs हैव टेकन अप पोजीशन फ्रॉम 1.7% टू अभी ऑलमोस्ट 6.66%. लास्ट 4-5 क्वार्टर से तो कंटिन्यूसली ग्रोथ आ रहा है FIIs के पोजीशन में. DIIs also kind of maintain their position at around 8-9%. इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल बाइंग होता है स्टॉक में, और बाइंग हो रहा है, विच कैन बी सीन इन द नंबर, राइट. तो इट शोज दैट एंड और एक चीज़ देख लो कि पब्लिक की बाइंग नंबर इज काइंड ऑफ कम डाउन फ्रॉम द प्रीवियस फ्यू क्वार्टर, शोइंग दैट द इंटेलिजेंट मनी इन द मार्केट जो है हमारा FIIs और DIIs, they are taking shares from the weak-handed public during the market crash. बहुत सिंपल लॉजिक है. तो यही था मेरा आनंद राठी के ऊपर बोलना. इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अगर आप बात करोगे, आनंद राठी का 74 की PE है. देयर मार्जिन्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ लिटिल डाउन इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर. देयर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस इज अराउंड 20-25%. अगर मैं इवन ओवर प्रॉमिस, ओवर डिलीवरी की भी बात करूँ, इफ वी से द बुल मार्केट स्टार्स दिल जनरली डू अ लिटिल बेटर. कैपिटल मार्केट स्टॉक है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. सो इवन इफ दे डू अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 30% इन द नेक्स्ट 1 year, जो उनका गाइडेंस से भी हायर है, सो देन ऑल्सो यू आर लुकिंग एट अ पेग ऑफ ऑलमोस्ट 2.5+. सो 2.5 की पेग इज कंसिडर्ड एक्सपेंसिव, ठीक है. तो जनरली कंपनीज जो 2x ऑफर और 1.5 टाइम्स अपना पेक से ऊपर है. पेक कैसे कैलकुलेट किया? बहुत सिंपल. आई डिवाइडेड द स्टॉक्स PE डिवाइडेड बाय द ग्रोथ रेट दैट द कंपनी हैज गाइडेड फॉर. तो इन टर्म्स ऑफ दैट मुझे ये कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लगता है. ऑब्वियसली many people will argue and say that it's a very consistent company and इसीलिए उसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है. But the point over here is that there's a very important saying in the market that you should not pay a premium for great businesses. A better investment is buying a good business at a very low or a decent valuation. So आनंद राठी के केस में क्या हो रहा है? It's a great business, बहुत ही बढ़िया business है, probably one of the best in India in wealth management and MFD. तो उनका वैल्यूएशंस राइट नाउ मुझे क्या बोल रहा है कि इफ आई इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस, मुझे स्टॉक प्राइस की ग्रोथ की एक इंजन नहीं मिलेगी. एक स्टॉक को ग्रो करने के लिए देयर आर 2 engines, राइट. वन इज दैट द EPS और अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द स्टॉक नीड्स टू कंटिन्यूअसली ग्रो अप, एंड द सेकंड इंजन इज दैट उनका PE री-रेट होगा क्या, राइट. तो अगर मैं स्टॉक को अगर राइट नाउ खरीदता हूँ, इफ यू आस्क मी व्हाट विल हैपन इज दैट आई नो मेरा EPS बढ़ेगा, राइट, बट मेरा PE बीइंग सो हाई, इसका बेसिकली राइज होना मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज P इज ऑलरेडी रिलेटेड. इसमें देर इज नो स्कोप फॉर मच ऑफ इट गोइंग मच हायर. क्योंकि अगर मैं ट्रेडिशनली इनका PE रेशियो मतलब चेक भी करूँ, अगर आप देख सकते हो, दिस पर्टिकुलर लाइन ग्राफ इज द PE, राइट. तो ये जो 2024 में बुल मार्केट की हाई थी, उस टाइम पे इसकी PE 78 थी. आज भी जब बेयर मार्केट चल रहा है तब भी इसके PE 75 के आसपास है. सो PE ज़्यादा बढ़ने की प्रॉमिस कहाँ है, राइट. सो दैट इज द रीजन अर्निंग से मेरा ग्रोथ आएगा.
and it'll be a very consistent growth, but it won't be a multi-bagger, or it won't be kind of like a growth where you can make a 2x in maybe a year. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर किसी को आनंद राठी में इन्वेस्ट करना है, देन इट्स अ गुड डील, बट इट्स नॉट अ ग्रेट डील. सिंपल. आपको कंपाउंडेड रिटर्न्स ऑफ 20% एज पर द ईपीएफ जैसे ग्रोथ मिल रहा है, वैसा ही आपको मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट वॉज इट गाइज. आई होप आप लोगों को आई कुड एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट आज का आज का मार्केट कैसा गया, राइट. हाउ यू शुड नॉट पैनिक इन सर्टेन सिचुएशंस, बिकॉज देखो टेक्निकली अगर आप लोग चीज़ों को देखोगे तो यू विल बी मोर करेक्ट देन जस्ट डिपेंडिंग ऑन न्यूज़, बिकॉज टेक्निकल्स में क्या होता है, इट इज़ द कलेक्टिव विजडम ऑफ द इंटायर वर्ल्ड दैट इज कमिंग इनटू द स्टॉक मार्केट, राइट. तो अगर टेक्निकली अपना आपका चार्ट पैटर्न्स आर नॉट शोइंग एनी ड्रास्टिक नेगेटिव बिहेवियर, राइट, तो आप लोगों को ज़्यादा वरी करके अपने पोजिशन एग्जिट नहीं करने. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू गाइस शुड नो. और टेक्निकली आज आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा दैट हाँ वी फेल अराउंड 1% निफ्टी, बट इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग कम था, आरएसआई ज़्यादा गिरा नहीं, एंड वॉल्यूम भी कल के जैसा हाई नहीं था. इट वॉजेंट अ पैनिक मूव टू सिग्नल एनीथिंग, राइट. तो बी देयर इन द मार्केट. मैक्स टू मैक्स कुछ बहुत खराब हुआ तो एक फिर से टाइम कंसोलिडेशन होगा, बट आई एम क्वाइट श्योर गोइंग बैक टू 21,000 और 20,000 का जो न्यूज़ फिर से आ रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. आई थिंक दिस डील इज गोइंग टू बी डन. इट्स गोइंग टू गेट स्ट्रेस्ड ओवर द नेक्स्ट 2 weeks एंड इवेंचुअली कुछ निकल के आएगा इससे, एंड देन यू विल सी द रियल फ्यूरी ऑफ अ बुल मार्केट जो होने वाला है. आई ऑल्सो फील इस बार का Q4 का रिजल्ट विल बी बेटर देन Q3, और अराउंड निफ्टी ऑन एन इंडेक्स लेवल भी अराउंड 8 to 10% अर्निंग्स ग्रोथ देके जाएगा, which is in line with a lot of estimates from a lot of people who cover the market and a lot of news. and जो आपका जो business updates आ रहे हैं अभी, I don't cover business updates, but I will cover a lot of the stocks exact results when they do come up, and I'll also share with you the current list of stocks which I'm following very actively, और उनका results उनका postmortem तो करते ही रहेंगे. And secondly, in the second part of video we clearly talked about आनंद राठी का result, कितना consistently they're doing their work, कितना अच्छा कंपनी है वो, बट द वैल्यूएशन ऑफ आनंद राठी अगेन इज समथिंग विच यू गाइस हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ. तो डोंट एक्सपेक्ट 2x 3x रिटर्न्स फ्रॉम अ स्टॉक जिसका पी ऑलरेडी 80 पे है, विच इज ऑलमोस्ट एज हाई एज जिसका जब उसका पी बुल मार्केट के पीक पे था, राइट. सो बी केयरफुल, लुक एट वैल्यूएशंस एज along with results. Just don't look at results and jump into a stock. Be very numbers driven. फोकस ऑन योर इमोशंस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फोमो हो जाता है, आपको लगता है कि अभी घुसना ही पड़ेगा वरना आई विल मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी. बी अ लिटिल केयरफुल ऑन दैट, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो. We'll come back with a new video very soon tomorrow. Thank you guys and bye.